Hello, class 4th. You all are again welcome in your EVS class. Hope you all are doing good. In this class, we are going to study chapter number 15. Very important chapter, Unit 7, Water is Life, Water Cycles. In this chapter, we are going to discuss about water cycle. जल चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे. बच्चों, हमारा अर्थ जो है इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन संभव है. अर्थ को इसीलिए ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि 71% ऑफ दिस प्लैनेट इज कवर्ड विद वाटर. और बच्चों, पानी हमें किस लिए चाहिए? पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा. किसानों को बच्चों किस लिए चाहिए? ताकि उनकी क्रॉप्स जो है अच्छे से इरिगेट हो सकें और अच्छे से ग्रो कर सकें. जितने भी लिविंग बींग्स हैं बच्चों, सबको पानी चाहिए उनकी डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ के लिए. बच्चों, पानी के मुख्य सोर्स हैं बच्चों. सबसे पहले रेन वाटर. रेन क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है. ज्यादातर फार्मर्स बच्चों रेन पर ही डिपेंड करते हैं टू इरिगेट देयर फील्ड. Then we have underground water. Much of rain water seeps into the ground. बहुत सारे ऐसे रेन वाटर्स हैं जो ग्राउंड में चले जाते हैं बच्चों, ग्राउंड उन्हें सोख लेती है. So here it collect as underground water. It is clean and safe to drink and does not contain any germs. Wells हैं, हैंड पंप्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं बच्चों. They are used to take out the underground water. ये अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं. कुछ जगह पे बच्चों अंडरग्राउंड वाटर्स come out of the ground in form of springs, and springs are common in hilly areas. Then we have inland water, lakes, ponds and rivers. They are different source of inland water and they are freshwater bodies. Lake क्या है? A lake is a large area of a water surrounded by a land. Pond क्या है? Pond may be natural or man-made and some ponds dry up during summer. River क्या है बच्चों? River originate from glaciers or springs in mountains and they also originate from the highland which gets plenty of rainfall. बच्चों, इंडिया की कुछ biggest rivers नदियां हैं. Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra, they originate from Himalayas. And these rivers get water from melting snow. इनका पानी बच्चों कहाँ से आता है? जो बर्फ जो है जब वो पिघलती है, thus they carry water throughout the year. और बच्चों, इसी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? स्नो फेड रिवर्स भी बोलते हैं. Some rivers on rainfall for water depend on rainfall for water and उनको हम बोलते हैं rain fed rivers. These rivers carry water only during the rainy season. जब बारिश होती है तभी इनमें पानी आता है बच्चों. They almost dry up during summers. Summers में पूरी तरह से ये सूख जाती हैं. कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये रेन फेड रिवर्स हैं और ये ओरिजिनेट होती है बच्चों डेक्कन प्लेट्यू ऑफ साउथ इंडिया से. Then we have ocean and seas. Ocean क्या है बच्चों? जो महासागर है, extremely large body है water की. So there are 5 ocean in the world. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. A sea क्या है? A sea is also very large body, but it is smaller than an ocean. ठीक है. There are many seas in the world. The place where sea water meets land, उसको हम कोस्ट बोलते हैं बच्चों, जहां समुद्र का पानी नदी से मिलता है. As you can see in the picture, a coast, जहां बच्चों नदी का पानी जमीन से मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया बोलते हैं. There are many seas in the world. Ocean and sea water is salty. ओशन का पानी, समुद्र का पानी और महासागर का पानी बच्चों नमकीन और खारा होता है, इसीलिए हम उसे अपनी एक्टिविटी में, डे टू डे एक्टिविटी में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. बच्चों, पानी को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं. We need to drink. We need water to drink, to do various household activities, cultivate crops and generate electricity. Since we do not get rain throughout the year, बच्चों क्यों? क्योंकि इंडिया में रेनी सीजन सिर्फ कुछ महीनों के लिए होता है, इसीलिए हमें पानी को कंजर्व करने की आवश्यकता है. This is done by building dams, reservoirs and canals. डैम क्या होता है बच्चों? डैम बनाया जाता है रिवर के किनारे to block the flow of water and this water is stored and is used to generate electricity. और डैम बच्चों, डैम से बाढ़ को भी बचाया जा सकता है. रिजर्वियर एक आर्टिफिशियल लेक है बच्चों जो कंस्ट्रक्ट की जाती है बिहाइंड द डैम्प. The blocked river water is stored in the reservoir and this stored water is used for various purpose. Then we have canal. Canal क्या है बच्चों? Canal एक channel है that is taken out from the river or reservoir and it is used to irrigate fields. बच्चों, वाटर के फॉर्म पढ़ेंगे. वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये आकर करते हैं बच्चों different forms में. The different form of the water can change from one form to another through process called the water cycle.
ADD ये एक्टिविटी है फॉर वाटर साइकिल. आफ्टर द इवेपोरेशन वी हैव कंडेंसेशन. इवेपोरेशन के बाद बच्चों क्या होता है, जब पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, जब ऊपर ऊपर जाता है, वो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. अब बच्चों हियर एक्टिविटी इज गिवन टू, सो यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी. नाउ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन, वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर और स्टीम जब उसको हीट किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वाटर वेपर उसको इवेपोरेशन कहते हैं. आप बच्चों प्रोसेस विच वाटर वेपर जब ऊपर जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है फिर से वाटर में, उसे कंडेंसेशन कहते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ टम्बलर ऑफ कोल्ड वाटर इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन. Then we have water cycle. But due to the heat of sun rays, water in rivers, lake and other water bodies evaporates in the form of water vapor. और यही जो water vapor है that rise to colder upper layer of the atmosphere. Here you can see बच्चों ये sun है. sun की heat से बच्चों जितने भी water bodies होते हैं, हमें पता है plants भी water release करते हैं in the form of transpiration. जब बच्चों पानी को गर्म किया जाता है तो वो ऊपर की ओर उठता है और गर्म हवा भी ऊपर की ओर उठती है. तो आप देख सकते हैं बच्चों जो पानी हीट के द्वारा गर्म हो जाता है तो ये ऊपर की ओर उठने लगता है. ऊपर की ओर उठने के बाद बच्चों जब और ऊपर अप इन द स्काई पहुंचता है तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. ठंडा होने के बाद जब वो बादल से टकराता है बच्चों तो वो फिर से पानी के रूप में आ जाता है. फिर से पानी सन रेस की वजह से गर्म होता है, फिर से वो ऊपर जाता है, फिर से कंडेंस होकर फिर से वो प्रेसिपिटेशन रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है. These droplets of water join together to form clouds, and droplets of water join to bigger drops. When they become heavy, they fall as rain, snow, sleet or hail. Rainwater बच्चों collect होता है in stream and rivers and flow to the sea. फिर से evaporation take place again in all these water bodies. इसी को बच्चों water cycle हम कहते हैं. The chapter is over now. Here we have hot question for you. आप बताइए, why are water droplets form on the outside of the glass of the cold water? Just because of what? Evaporation or condensation? Answer this. And the chapter is over now. I will be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. And revise water cycle, draw its diagram properly and learn it by heart. Thank you. Bye-bye.